जी, मैं हूँ ग्रैंड इना बाली बीच होटल पे और ये इसका इनाग्रल जो सुहार्तो साहब हैं उन्होंने किया था 4 अक्टूबर 1993 को। यहाँ की जो एक बहुत डोमिनेंट चीज़ है वो ये कि हिंदू मेजॉरिटी है और आपको जो रेलिक्स कल्चर मूर्तियाँ वो सब मिलेंगी तो बहुत डोमिनेंट आपको कल्चर यहाँ नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ जो कदर मुश्तरक है इंडोनेशिया जकार्ता से बाली में वो है खुश अखलाक़ी। और ये रिसेप्शन पे ये एक फवारे अगर आप देखें तो ये बालिनीज़ ड्रैगन एक है जो ये इस सिंबल्स भी आपको बहुत सारे नज़र आएंगे। सो इट्स नेचुरल करीब। अब सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी जब हम एयरपोर्ट के रास्ते में थे कि जो कोकोनट का जो दरख्त है उससे ऊंची इमारत नहीं हो सकती कोई। यहाँ भी ये रेलिक्स आप ये देख सकते हैं, जैसे ये इसी तरह और है। और वो अगर आप पीछे देखें और ये आपको ग्रैंड का जो एक एक्सटीरियर है वो ये है। सो दिस इज़ हम देखेंगे बाली स्पेशल साथ ही। सो बाली में हम मौजूद हैं और जब हम एयरपोर्ट पे आए तो जो हमारी जिनसे मुलाकात हुई वो हैं डेजी। शी इज़ लाइक अ टूरिस्ट गाइड और टूरिज़्म पढ़ा उन्होंने 1 साल और बहुत एंजॉय करती हैं अपनी जॉब को भी। और गुड आफ्टरनून डेजी। गुड आफ्टरनून सर। So thank you so much for being a host and the tourist guide. Okay, welcome. So what is so special about Bali? If the people who are watching you in Pakistan, what will you say? Okay, so we have a lot of temples here in Bali. We have a kind of temple like we have a Tirta Ampul temple. It's a holy spring temple. Okay. We have Uluwatu temple. It's a temple on the cliff. And Tanah Lot temple, it's a temple on the beach. And also we have mother of temple like we call Besaki temple. Besaki temple. Yes, okay, in Karangasem. And you are all of the view that all the houses of the people who live here, the Hindus, everybody has a small temple in their houses. There are almost about 1,000 temples in Bali? Yes, approximately 1,000 temples. Because every houses we have one small temple we call Sangha or Merajan. जी हमारे साथ हैं अभी हम। Are we going to the zoo? Is it so? Yes, we are going to Bali Zoo. Bali Zoo. Yeah. So how old is this zoo? It's already 15 years old, sir. 15 years old. Yes. So the tourists who come to Bali, they definitely go to the zoo? Yes, sure. Okay. So we are going to the zoo? Yes. So वो जो zoo पेशावर था तो zoo चलते हैं हम। We're going heading towards the zoo, the Bali Zoo, और देखते हैं कि वहाँ हम सोशल एनिमल हैं तो वहाँ कौन कौन से एनिमल्स हैं। मिलते हैं आपसे वहाँ बाली जू में। सो जनाब बाली जू की ये एंट्रेंस है और यहाँ ये इसको आप बंदर कहें जो भी किस्म है बड़ा वो। और ये मगर आप इसको बनावा बहुत कमाल है। ये मेटल है, स्टोन है, लेकिन इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट। आइए चलते हैं बाली जू की तरफ। including mammal, reptile, and birds. Okay. Yeah. So how many mammals is it? It's the total animal is around 500 animals. It's deer? Yeah. This is the deer. Yes, right. The deer is Indonesian smallest deer. Okay, this is the Indonesian smallest deer. Yes, right. And this area we call it Deer Park. This is called Deer Park? Deer Park. Okay. Deer Park. Like this deer is open here? Yeah. Wow. यहाँ ये ख़ास चीज़ है कि हिरन जो है वो बिल्कुल खुले में और आप उनको ऐसे खिला सकते हैं। ये देखें वो टोकरी से और ये जैसे So when it comes to these deers, you can only like serve them, give them carrot and? Yes, carrot, peanut. Peanut? Yes. Okay. But we also providing like a grass every morning. So they have their own food. This is like a snack for them. This is like a snack for them. So party. Okay. And where are you from? Egypt.
Egypt, lovely. Is it like your first visit to Bali? Yeah. So how does it feel with those parrots? Yeah. Good. Okay. Assalamu alaikum. Salam. Your good name? Muhammad. Muhammad, you from Egypt, Misr? Egypt, yes, Misr, Wow, yeah. wow. Yeah. So how did you find Bali? Bali, most of my friends come here and they tell me that's amazing, lot of activities. Okay. So I interested to come here and see all the activities. Okay. I'm very happy. I have been here there 4 or 5 days. I love to be here for 50 years. Okay. So you people are married? Yeah, we just married from 1 week. For 1 Yes, week? Wow, so congrats, this- congrats. Wow, wow. This is our honeymoon. Wow. Yeah, yeah. मुबारक। ये वो है the famous slow and steady wins the race। वो जो खरगोश से जीत गया था कछुआ, ठीक है? ये है और वो शेल और यहाँ हम mere turtles की भी बात कर रहे थे। Where can we find and see the mere turtle? Oh, these meerkats Meerkat is in Africa. in Africa. Yes, yeah. So how many do you have here in the zoo? We have 4 right now. Yeah, Four four meerkats. meerkat. Yeah, we are exported last 2 years. Is this the Macau one? This is an Indonesian parrot and it's called Kakatua. Kakatua. You feed the lion Yes, every day? every day. Are they friendly? Friendly. Or do they bite? Friendly at exhibits, in our exhibit. Oh, okay, okay, okay. So, will you be? What are the timings to give when you give them food? What time? And now it's okay. Now it's okay. Yes. So, Time every day is okay. so is there a Because it's animal food share. If the lion feeding time as a gift from zookeeper is this morning. okay? Yes. ये चिकन मीट जो है जी वो खिलाया जाने लगा है और मैं okay. Feed for the lion is keep in the roof. Okay. Keep in the roof like this. ये देखेंगे नॉट करके to make it उसका strong. पहुंचा देंगे वाह To make it strong like this. okay And then push, continue to okay until on the lions. okay Okay? so even I can do that too okay okay we just hold it for a while ये देखिए जी ये ऐसे वो जो है चिकन वो आगे को जाएगा और उम्मीद है कि अगर उसको भूख लगी है तो वो ये चिकन की हमारी दावत शेर जो है वो कबूल कर ले ओह माय गॉड वो देखिए जी वो आ गया should I take it down? Will you jump? Yes, I think we're going to ride the bus जो एक यहाँ बस चलती है इस zoo के लिए वो है ये इसे भी आप एक मिनी डबल डेकर कह सकते हैं बाली जू के लिए और ये हम अब उसकी छत पे यहाँ आ गए हैं और ये सफ़र शुरू होगा तो जैसे जैसे हम देखेंगे बाली जू को वैसे वैसे आप भी देखेंगे बाली जू Whoa, there's an elephant. There it is. Oh, lots of them. Yes. And can we do that in the water? Yeah. Yeah, can be We have done. Big pole. We have big pole. Okay. For the riding. Okay, okay, okay. This safari started when this bus started? Double decker, how long? Double decker starting 2 years ago. 2 years ago. How are you? What's your name? I'm good, and my name is Algi. Where are you from, Algi? Indonesia. Wow. So, have you been to Bali before? Twice. Twice. This is my second time. This is your second night. What is the best place you like in Bali? Well, I would say zoos, because I'm mostly interested in animals. Okay. What you like the most in animals?
I would say turtles and kangaroos. Okay. So what about the kids who are watching you, and should they come to Bali Zoo? I would recommend a yes, Okay. very much. So what is not to be missed in the zoo? Definitely a show, Okay. the animal shows. Oh, what about the elephant ride? I wouldn't really recommend it, but I think it's fun. But I didn't ride it. You didn't ride? Too scared. You're scared? Yeah, I'm okay. scared. But you like elephants for that matter? Yeah, I do like elephants. Oh, lovely meeting you, son. दस एकड़ के रकबे पे है ये बाली जू, और हम जब यहाँ आए तो उमर से मैं बात कर रहा था कि कोई स्मेल नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई बू नहीं। कभी शेर के पिंजरे के पास आप जाएं तो आप तौरजू याद करें बहुत बू आती है तो सोचते भाई अनअवॉइडेबल है, लेकिन उसका भी हाल है। अब आप ये देखें, ये अक्सर जगह आपको नजर आएगा। आफ्टर एंटरिंग द जू प्लीज स्टेप डिसइंफेक्शन मैट फॉर योर हाइजीन रीजन। थैंक यू। अब ये देखें, ये उन्होंने हर जगह ये मैट लगाए हुए, थोड़ा सा वेट होता है, और क्या मटेरियल है इसके अंदर क्या है, इसको आप ऐसे करके गुजरते हैं इतनी सी करने से तो वो सारा ये देखें ना, यहाँ से ये गीला है तो ये आप आराम से साफ करके निकल जाते हैं। सो ये इस तरह की चीज़ें, और मेरा ख्याल है कि दुनिया से जब आप सीखते हैं, अब आप हमारे स्पेशलिस्ट सबको दुनिया का एक्सपोजर सब चक्कर लगाते हैं, वही चीज़ें हम उन सक्सेस स्टोरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने मुताबिक जैसे हम चाहें, और कोई हमारे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आइए। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि 300 लोगों का स्टाफ है यहाँ, पूरा सफाई मेंटेनेंस हर चीज़ के लिए, सब में 300 लोगों का फीड करना हर चीज़, 300 लोग हैं जिस 10 एकड़ का जो बाली जू है, जिसको दुनिया भर में वो चाहते हैं कि लोग आएँ और देखें। और ये भी पता लगा कि बाली में यहाँ सबसे जो टूरिस्ट का जो पहला नंबर है वो है ऑस्ट्रेलियंस का, और दूसरे नंबर पे हैं इंडियंस, तीसरे नंबर पे हैं जापानीज़, और चौथे नंबर पे हैं चीनी, जो सबसे ज़्यादा बाली विज़िट करते हैं। आइए। So thank you so much for your time and care. So just tell me that the people who are watching you in Pakistan or all over the world, Right. what 3 reasons will you give the viewers to come to Bali Zoo? Why they should come here? One reason is Bali Zoo is a zoo with intimate interaction, up close and personal experience with the animals. With the animals. Especially from animal from Indonesia, right? Okay. And then secondly, Bali Zoo located is very strategic. You can combine with another interesting place in Bali. Okay. So that will be one of memorable experience. Great. Then number 3 is Bali Zoo is really, really friendly people. Friendly people. No doubt about it. Yeah. No doubt about this. So you just have to say one Thank thing. you so much. हम देखेंगे. हम देखेंगे. Thank you so much. It's good. Bless you. Bless you. Thank you. बाली अब आप आए तो ये नहीं हो सकता कि आप GWK ना आए। गरुड़ा विष्णु कंचाना, यानी द व्हीकल ऑफ विष्णु। अब ये जो आप पीछे स्टैचू देख रहे हैं, ये अब दुनिया का सबसे तीसरे नंबर पर तवीलुल कामत स्टैचू है दुनिया भर में। पहले नंबर पे जो स्टैचू है वो बुद्धा का है जो चाइना में है, दूसरे नंबर पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और तीसरे नंबर पे ये GWK है। जो हमें पता लगा अपने गाइड से वो ये कि 2015 में इसकी तामीर शुरू हुई, और हज़ारों जो मुजस्समा साज और तामीर से जो मुतल्लिक लोग हैं उन्होंने इसको तैयार किया है। और अब वो जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये एक बाकायदा एक साइट है, एक नॉट टू बी मिस्ड है। जितने भी टूर्स होते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। इसके अलावा पार्क है, सब म्यूज़िक है, सब सिलसिला है, बहुत दूर से ही दिखाई देता है अपनी हाइट की वजह से। तो ये सबसे उसका क्लोजेस्ट, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से ये सबसे करीब से नज़र आता है। तो हम देखेंगे कि सारी टीम इस वक्त बाली में मौजूद है, और देखते हैं कि अब GWK से हमने आगे कहाँ जाना है। हमारे साथ ही रहिए। Hi ma'am, how are you? Good, how are you? So, what brought you here? This is like your first visit to Bali? Yeah, the first time here, and I can feeling too much energy. Okay. What about the weather, the climate, the environment here, the beaches? Have you been to the Yeah, sites? it's really nice. The weather is a little bit similar to my country, but he's
is more hot. And where are you from? Brazil. You're from Brazil. Okay. Yeah. So have you visited other countries too? Yeah, Australia and New Zealand. Oh, so what brought you here to Indonesia? Why I came to Yeah, here? yeah. Because I have heard a lot about here, like the culture Okay. and the people are really trust. Trust, okay. Yeah, you know what I mean? And then the religion is amazing feelings. What about the arrangements here for tourists? Are they good All good. in Indonesia? Yeah, a lot of friendly people helping me a lot because Okay. I by my own. Okay, you've come alone? Alone. All the way. Come alone. Yes. Lovely, lovely. So at GWK Cultural Park, we have another beautiful tourist from Colombia. Colombia. Oh, your good name? Alejandra. Alejandra. So is it like your first visit to Indonesia, or have you ever It's been here before? It's my first visit in Indonesia. It's a beautiful country. I'm loving it so far. So how long are you here? When did you come? I came 2 days ago. 2 days ago. What have you seen till now in Bali? Until now, I've been doing lots of tours, Nusa, Uluwatu, Kuta, and I'm going tonight to Ubud. Both. So visiting temples, doing water sports, having a lot of fun. So what you enjoyed the most here? So far, I think Jinkewa. This GWK? Yeah, That's about- GWK. And I'm very excited to go to Komodo. I'm going to Komodo next week, so I'm really looking forward to it. Lovely talking to you, Alejandra. Thank you so much. अच्छा जी, उलुवतु टेम्पल हम यहाँ आए हैं और जो ये पता लगा है कि अभी एक हाइट पे क्लिफ पे हमें जाना है और ये बता रहे थे कि एनकों का आप ख्याल रखिएगा कि बंदर भी यहाँ बहुत सारे होते हैं। टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद है और मुख्तलिफ शहरों से एक इट्स ऑल क्राउडेड आई मस्ट से। सामी बाजी की हाल? बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਓਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਬੀਤਾ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਏ ਹੋ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ। कैसा ਰਿਹਾ ਟੂਰ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਪੁੱਤਰ? ठीक है ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मिस्ची ਮਿਸਚੀ। ਮਿਸਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? मीठा ओए सदके वाजिब। अच्छा, कोई गाना संग सुनाओगे? तारे को सुनाएंगे जी फिर। लौंग वे मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची वे तू लौंग वे मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची तेरे इश्क नी मारी कुड़ी कच दी कवारी तेरे इश्क नी मारी कुड़ी कच दी कवारी बल्ले बल्ले आंदा जी कि नहीं? बल्ले बल्ले विटोर पंजाबन दी बल्ले बल्ले विटोर पंजाबन दी जुत्ती काली मड़ोड़ा नहीं हो चल दी टोर पंजाबन दी बल्ले बल्ले विटोर पंजाबन दी ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो लाहौर कदों आ रहे हैं तो दसो फिर। ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਨਾ ਲੈਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਪਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੰਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ठीक है, ठीक ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ। ठीक। तो दोस्ती पाकिस्तान इंडिया दी को नारा लाइए ना जी फिर। थोड़ा पाकिस्तान दे जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ते आओ ना जी, फिर आओ जरा देखो। ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। इंतजार रहेगा। बड़ी खुशी हुई, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। बोली अपनी बोल के तो बहुत ही अच्छा लगा। यूं वास्ते रहो, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ की एक और जो एहतियात हमें पता लगी वो टेंपल की, एक तो ये कि ज़ाहिर बात वो एक इबादतगार हो, उसकी एक सेंटिटी और तकद्दुस है, तो उसके लिए कि आप जो भी लोग आते हैं वैसे या वैसे तो आप अनकवर्ड नहीं जा सकते। अगर मर्द भी उन्होंने अगर हाफ पैंट्स पहनी है, लुंगी पहन के जाएंगे, और वैसे अगर कवर्ड है तो ये आप एक बांध लेंगे। ये एक ट्रेडिशन रिवायत उनकी। दूसरा वो ये भी हमें बता रही थी गाइड के बंदर बहुत सारे होते हैं, तो वो कह रहे थे कि ऐनकों का आप अपने जो है वो ज़रूर ख्याल रखें। सो आइए चलते हैं, ये कहीं चोटी पर है, तो आप हमारे साथ ही रहिए। Hi sir, how are you? Have you been to the temple? Yes. How was it, the whole experience? It was very nice. It's beautiful. Okay. Beautiful at sunset. Wow, where are you from? From Canada. Canada, lovely. Yes. So is this like your first visit here? It is. First in Bali. How's it been? Beautiful. What A about beautiful Bali? experience. If you define Bali in one word, what it will be? Peaceful.
Peaceful, it is. Yeah, It is. yeah. It is. I'm from Pakistan. Oh, nice very to meet nice you. talking to you. Nice to Thank meet you so you. much. Thank you. Thank you. ये अगर आप साउंड सुन रहे हो और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये वो शायद कुछ घंटियाँ या साउंड हैं जो जिसका शायद ताल्लुक मंदिर से ही हो। आइए देखते हैं। और ये एक बात फिर मैं आपको बताऊं, देखिए जो आप टूरिस्ट जिनको आपने देखा है उन्होंने इसी वो हाज़री या टेंपल पे जो भी उनका जाना है उसके लिए they've covered themselves, वो उन्होंने उस लुंगी पहन के वो सब वो है। सो डेज़ी ये बता रही थी कि ये जिसे आप इंडियन ओशन कहते हैं, बहीरा हिंद, ये उसका एक मंज़र है। और मेरा ख्याल है कि जो लोग सुबह भी यहाँ आए तो यहाँ का सनराइज़ भी देखने से ताल्लुक़ रखता होगा, बट द सनसेट डेफिनेटली ये आपको बाली में ही मिल सकता है। लुक एट इट। जी ये वो एक अब इसको आप मेडिटेशन कहें, इबादत कहें, वो जो दास्तान है रामायण की उसको ही सुना रहे हैं, लेकिन ये उसका एक अंदाज़ आपके सामने। और कितने इन्ग्रोस्ड हैं लोग, कितनी तवज्जो के साथ इन्हमाक से इसको देख रहे हैं एक रूहानी मश्क के तौर पे आपके सामने। तो यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, चाइना से, सारी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ मौजूद हैं। सूरज डूब रहा है जी, और यहाँ ये जो परफॉर्मेंस है इसमें जो लोग इसको कोलैबोरेट करते हैं और जितने टूरिस्ट आते हैं उनके लिए प्रेजेंट करते हैं वो रामायण की द्योमालाई कहानी या वो उसको उस तरह से करके सब किरदार, तो इसके लिए भी बड़ी एक रिहर्सल दरकार होती है। ये एक पूरा इवेंट है और फिर इतने सारे टूरिस्ट दुनिया भर से आए और आपने देखा कि कोई सब इन्ग्रोस्ड हैं एक परफॉर्मेंस है, उसको देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, सामने सूरज को गुरूब होते हुए देख रहे हैं। अच्छा जी, वो टेंपल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम में परफॉर्मेंस के ख़त्म होने से पहले हम वहाँ से हुए आए, जल्दी से चलते हैं। तो जी यहाँ तक हम आ गए हैं। डू नॉट एंटर फॉर वर्शिपिंग ओनली। सो ये वो टेंपल है जहाँ सारे टूरिस्ट आते हैं और फिर वो जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ होती है। और अभी हम जब वहाँ से जाएंगे जो मंज़र आप देखेंगे, और अगर आप ये रंग देख सकें इस शाम में, ये जो फूलों का है या क्या, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत मंज़र है। और ये व्यू आपको सिर्फ यहीं से मिल सकता है अगर आप यहाँ से टॉप पे लुक एट इट, इट्स ब्यूटीफुल। सो आइए वापसी पे वहाँ से हाइट पे से देखते हैं कि वो जो टूरिस्ट सब निकलेंगे तो वो कैसे, और फिर यहाँ से भी आप अगर आइए तो ये एक बेकरां समंदर जो है बहीरा हिंद, वो भी आपके सामने। आई एम बाली जी, मैं हूँ यहाँ बाजरा सांगी, और ये इसको आप ये कहें कि जो स्ट्रगल मूवमेंट मॉन्यूमेंट ऑफ बाली है वो ये है। सिचुएशन ये है कि कोई स्कूल का टूर भी आया हुआ है, टूरिस्ट भी आए हुए हैं। अगर हम इस तरफ देखें तो ये वो पूरा डायरेक्शन साइन मौजूद है, कोई 3D म्यूज़ियम यहाँ है जो होता है, डेफिनेटली उसकी हिस्ट्री और उसके रिगार्डिंगली होगा। सो यहाँ से अगर हम चलें तो ये एक उसका वो जिसे आप पेशानी माता या मेन एंट्रेंस कहेंगे, वो ये है बाजरा सांगी का। सो ये आप देख सकते हैं, ये है जी ये बाजरा सांगी और है। और अब हम आपके साथ हम जितना भी हमारे पास वक्त है वो हम देखते हैं कि बाजरा सांगी क्या है और मुजस्मा साजी और जो यहाँ भी वो जो सिलसिला है तारीख़ नज़र आती है। आइए देखते हैं।
सो बालिनीज कल्चर की पूरी कहानी इसके अंदर है। ये जो स्टूडेंट्स को आप देख रहे हैं ये जावा से आए हैं और वो बता रहे थे कि अगर बस से आप आएँ तो 1 रात का सफ़र है, वैसे जहाँ से कोई 2-1 घंटे का। तो ये सब बस पे आए हैं और वो देखने आए हैं अपने कल्चर को, बालिनीज कल्चर को, कि वो कौन हैं, क्या हैं। और ये जो भी आसार कदीमा होता है, गालिबन ख्याल है कि कोई 1700 साल पुराना, और फिर वो ये कह रहे हैं कि इसकी बहाली भी की गई। सो आई थिंक देव डन अ वंडरफुल वर्क। आइए अब ये देखिए जी, राउंड पमेरियन एग्जीबिशन रूम। यहाँ वो पूरी वो कह रहे हैं वो जो एक तस्वीरी झलक है उससे इंडिपेंडेंस की जो डेथ से उन्होंने जो आज़ादी हासिल की और वो जो मूवमेंट थी, आइए वो देखिए। ये देखिए आप कि अब 1906 की जब हम बात करते हैं, जब मुस्लिम लीग क़याम में आया, तो उस वक्त द डच एक्सपेडिशनरी फोर्सेस मार्च फ्रॉम सनूर बीच टू कज़ीमान विलेज ऑन सितंबर 1906। यानी जब मुस्लिम लीग का क़याम हुआ उस वक्त डच जो हैं उन्होंने यहाँ से सनूर बीच से वो आए वहाँ कज़ीमान विलेज की तरफ। अब वो जो डिपिक्शन है आप ये देखें, Denpasar castle's broken gate because of the cannon shot from the Dutch military expedition troops. तोप का वो जो गोला उससे वो उसका गेट टूटा, और फिर the main gate of Denpasar castle that has broken because of the Dutch cannon shot in 1906. तो ये पूरा उसकी उन्होंने वो तस्वीरी झलक भी एक दी हुई है और वो इसको याद रखना चाहते हैं। वो याद रखना चाहते हैं ताकि उस आज़ादी की और उस मूवमेंट की कीमत का पता लगे। सो एक पूरी तस्वीरी एक कहानी। और आप ये देखें कि ये भी सारे मीडियम्स होते हैं, आइदर इट बी अ फोटोग्राफ और अ फिल्म और अ फिक्शन। तो आप यही चाहते हैं कि आप रूशनास करा सकें आइंदा आने वाली नस्लों को और कदर कर सकें कि जो कुछ आपके पास मैसर है ये इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं, इसके लिए लड़ा गया है, इसके लिए अपनी जानें कुर्बान की गई हैं, वो जिसको दामे दरमे सुखने कहते हैं। तो ये एक पूरा एक झलक है। ये जनाब हम ऊपर आ गए और यहाँ से आप पूरा एक व्यू, जिसको 360 डिग्री आप कहते हैं, जैसे हम अपने वर्चुअल स्टूडियो की भी बात करते हैं, ये आपको 360 व्यू पूरा जो है इस पार्क का और बाजरा सांगी का पूरा व्यू, हम उसके बिल्कुल टॉप पे मौजूद हैं। यहाँ से आपको ये दिख जाएगा और ये दायरा वहाँ मुकम्मल होगा जहाँ से हम स्टेयरकेस से ऊपर आए। अब ये देखिए आप कि ये पूरी तारीख़ जो है ये 300 BC बिफोर क्राइस्ट, ये उसकी एक झलक आप देखें। वो इंसान किस तरह से था, कैसे रहता था, ये उसकी एक झलक है। और यहाँ अगर आप देखें तो फिर ये 778 AD, अब ये सफ़र तय करते हुए फिर ये झलक दुनिया तो क्या कहते हैं, क्या से क्या हो जाएगी वाली बात। दिस 8th सेंचुरी, काम हुनर सीखने शुरू किए, चीज़ें इन्वेंट होना शुरू हो गई, अपनी हिफाजत के लिए घर तामीर होना शुरू हो गए, गार दरख्तों से का सिलसिला आगे बढ़ा। दिस इज़ 914 AD। ये देखें आप उसकी झलक, बहुत ही दिलचस्प और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ये देखिए 1011 में फिर क्या सूरज जो है वो बनती है। और ये फिर 11वीं सदी में अगर आप देखें तो वो कुछ मंजर ये, और फिर ये अपने पगोडास कहीं या जो उनका तर्ज तामीर है वो कुछ ये है। ये हट्स को आप देखें, ये भी 11वीं सदी। और फिर कुछ यूँ रास्ते भी बनने शुरू हो गए, खेत सोचा पहाड़ों पे कैसे काश्त किया जाए, तो फिर काश्त के हुनर वो सब भी यहाँ दिख रहा है। फिर 1347 से 1350 तक का जो सिलसिला, तो आप देखें वो साइज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। छत आ गई, छत की अहमियत भी आ गई, हिफाजत पे भी फिर लोग मामूर होने लगे जब आपके वो एसेट्स बनने लगते हैं। एंड दिस इज़ नाउ लाइक 14th सेंचुरी, नाउ मोर टाइम टू वर्क। हुनर पर ज़्यादा काम हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं, लकड़ी का कोई काम कर रहा है, कोई छत का बना रहा है, कोई
सब वो कर रहा है सिलसिला, इसमें सब लोग लगे हैं। और फिर वो तामीर क्या कर रहे हैं वो भी सामने, और फिर ये देखें वो तामीर के नए नए तरीके भी कैसे कैसे निकाल लिए गए, जैसे वो आप लेंटर को वो कहते हैं कि भी वो एक सूरत नज़र आ जाती है। नाउ दिस इज़ 1489, और अब जब एक वाज़ेह चीज़ आपको नज़र आती है कि अब आपको पत्थर और मजबूत इमारतें नज़र आना शुरू हो गई जो अच्छी रहा करती थी, अब वो जो है इनमें एक वो, और वो जो संत हैं या साधु हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और फिर मज़ीद आगे आप बढ़ें तो ये 17 से 19वीं सदी तक का ये है। फिर अब साइंस भी यूज़ होना शुरू हो गए याद करने के लिए, वो भी हो गए यादगार के लिए बनाने के लिए, और ये भी एक सिलसिला हो गया। और ये डिफेंसिव काउंटर अटैक ऑफ Balinese पीपल, वो जिस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर Jelentik अगेंस्ट द इन्वेडिंग डच ईस्ट इंडीज कॉलोनियल आर्मी इन फ्रंट ऑफ जागारागा फोर्ट। ये है वो जागारागा फोर्ट, और अगर आप पीछे देखें तो वो धुआं है वो जिससे वो सारा उठ रहा है जब वो कैनन चली, और फिर ये इसमें आपस में जंग जो है वो Balinese लोग और जो डच आर्मी के दरमियान जो जंग हुई उसकी एक झलक है। और यही सिलसिला फिर आगे यहाँ भी नज़र आता है, द बैटल ऑफ कुजाम्बा। ये हर उस जगह जहाँ जहाँ के मुतल्लिका इलाके हैं वहाँ सब वो जो रेजिस्टेंस हो रही थी डच आर्मी के अगेंस्ट, वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने वो तसल्लुत से आज़ाद करने के लिए। और ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि ये सिलसिला अभी तक भी जारी है। हम अब मकबूजा कश्मीर की बात करें तो वो भी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। सो ये एक झलक 1868 की। अब यहाँ उन आर्टिस्ट को भी बड़ी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने इस एक एक को पूरा हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस बैठे उसकी एक मंजर कशी की है, उसको दिखाया है, छोटे छोटे मॉडल्स दिखाए हैं। आप डिटेल अगर देखें काम की तो उन आर्टिस्टों के लिए भी बहुत दाद है कि वो अगर कहीं खून छलकता हुआ नज़र आ रहा है तो वो भी नज़र आ रहा है, ज़ख़म है, उनका कैरेक्टर है, चेहरे के तासुर हैं, दरख्त हैं, फिर उसको कैसे पेंट किया गया है, ये सारा सिलसिला जो है यहाँ। अब आप यहाँ तक देखें तो ये 20 अभी अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो ये पूरा एक पूरी तारीखी झलक है। और ये वो 1908 में फाइनल बैटल हुई। द बैटल वाज द फाइनल बैटल बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ कोलुकुंग किंगडम एंड द डच आर्मी इन फ्रंट ऑफ कोलुकुंग रॉयल पैलेस, एंड ऑलमोस्ट ऑल द रॉयल फैमिली वर डाइड विद देयर फॉलोअर्स इन फाइटिंग टू द डेथ स्पिरिट ऑफ पुपुतान। ये सफ़र आगे बढ़ता है और अब आप पहुंचते हैं 1946, और ये एक बहरी मंजर देखें कि 4 अप्रैल 1946 को कोई 8 बजे का रात के करीब देयर वाज अ नेवल बैटल इन बाली स्ट्रेट बिटवीन द यूथ मिलिट्री ट्रूप्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्कदी एंड द डच बैटल शिप। और ये नौजवानों ने ये लड़ी, ये आज़ादी जो है वो जितने भी अब हम ये देख रहे हैं रेलिक्स में से, मैं उस तरह से कोई तारीख़ का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन इतना सब जानकारी सामने वो ज़रूर मिल रही है। ये वो अटैक है जी जो NIC बैरक्स पे कयामूस दपनसार में हुआ, और वन ऑफ द यंग अटैकर्स ईदा बगूस जीपा वाज डाइड इन दिस इंसिडेंट। ये वो उन्होंने अटैक किया उसी आज़ादी की तहरीक के सिलसिले में, तो उसमें उनके एक लीडर, और वो देखे गालिबन वो जो उनकी लाश कहेंगे वो भी उन्होंने दिखाया है कि वहाँ से जब फायर हो रहा है तो इस अटैक में। और यहाँ अब आप वही 1946, ये एक और मंज़र है, आज़ादी की सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, कोशिशें लगी हैं उधर दोनों तरफ की। अफवाज और आज़ादी के मतवाले जिन्हें आप कहेंगे वो अपने यानी Balinese जो अपनी आज़ादी है बाली की, उसकी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ देखें कि 20 नवंबर 1946 बैटल ब्रोक आउट बिटवीन द Singwarana मिलिट्री ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ नगूरा राय एंड द डच आर्मीज। इन दिस बैटल नगूरा राय एंड हिज ट्रूप्स वर ऑल डाइड। ये वो सारी शहादतें और वो ये सारी हलाकतें, ये वो कुर्बानियाँ हैं जिसका मंबा है ये आपका बाजरा सिंगी, ये जगह जो है। तो ये एक तारीख का एक छोटा सा सफ़र जिसमें ये 33 आप समझे हमने 1 से शुरू किया था तो 33 तक ये सारा एक सिलसिला जो है ये वो हुआ।
वो जो एक नेचर फ्रेंडली होना है बालिनीज लोगों का, वो आपको जहाँ भी पानी हमने जहाँ देखा है वो मछलियों के बगैर नहीं देखा। अब कबूतर यहाँ आपको वो घुटर गूं भी सुनाई देती है, यहाँ उन्होंने यकीनन अपने वो घोंसले भी बना रखे होंगे, तो वो इनकी कॉस्ट पे कुछ नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो जनाब, ये एक सफ़र ही मैं कहूँगा, तारीख का सफ़र था, जो बालिनीज लोगों की जो मूवमेंट है, जो उनकी तहरीक थी, उसकी एक झलक आपने देखी। हम देखेंगे कि सिलसिले में बाली में मौजूद है। देखते हैं आगे मंजिल और सफ़र हमें कहाँ लेके चलता है। दिस इज़ द फेमस लगियन स्ट्रीट बाली। नाइट लाइफ के लिए बहुत मशहूर है, और कहते हैं कि जैसे वेगस, लास वेगस की जैसे है नाइट लाइफ, डिस्कोज और वो सब यहाँ है, लेकिन टूरिस्ट के लिए यहाँ हर चीज़ मौजूद है, उनके पहनावे के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए। तो लंच के लिए जाना है जी, खाना खाना है दोपहर का, आइए चलते हैं। बल्कि कोशिश करेंगे कि खाने में आपके लिए कुछ एक सरप्राइज़ हो। जी, ट्रॉपिकल मौसम में तरबूज से अच्छा ड्रिंक कोई नहीं हो सकता, और आप नींबू भी थोड़ा सा इसमें छिड़कें तो बहुत ही अच्छा है। लगियन विलेज होटल में हमने भी खाना खाया। प्रॉन्स है, जो मैं फ़र्क देख रहा था वो ये है कि ये इससे ज़रा थोड़ा सा अंडर कुक्ड रखते हैं, वेल डन नहीं होता, थोड़ा सा कच्चा सा रहता है, और उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू, ग़ज़ाइयत ज़्यादा है। तो जो सरप्राइज़ मैंने आपसे कहा था, जो हमारी सारी टीम है, जो सब इस प्रोजेक्ट में सब हमारे साथ रहे, हम सब ने सोचा कि हम थोड़ा थोड़ा गाना आपको सुनाएंगे सारे मिलके अपनी अपनी पसंद का। सो विल स्टार्ट विद विष्णु। विष्णु, हियर यू आर। All you have to do is dream, 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 dream. Okay, is it like your composition? Okay, okay, Adlai, it's your turn. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oh, great. Bismillah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan biru. Betul nggak? Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Emang lagi cantik, lagi pengen di Bali, pengen berduaan dengan mereka saja. Emang lagi cantik. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, di Bali yang bagus. Semoga datang tamunya banyak. Oh, great, great, great. And now the executive director of Hum Dekhenge, Umar, a great find. Ji Umar, over to you. ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। Lovely. दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे। You're watching हम देखेंगे। जी, आई एम इन फ्रंट ऑफ हार्ड रॉक कैफे, और हम बाली में कुता बीच के करीब हैं, और अब आपको जो मैं चीज़ दिखाऊँ आपको बहुत कुछ याद कराएगी। ये देखें, कुछ याद आया? स्कूल में हम टांगे पे जाते रहे, और आप इस टांगे को देखें, इसी तरह होता था लाहौर में, रजिस्ट्रेशन नंबर भी हुआ करता था,
यहाँ ये सेरेमोनियल है, कल्चर के तौर पे रिप्रेजेंटेशन है। ये देखें आमने सामने सीटें हैं, ये ज़रा फ़र्क है। ये वो सब है जो हम थे, जो हमारा कल्चर है। ये चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पर शर्मिंदगी उस वक्त दूर होगी, जैसे घोड़े की आंखों पे जो खोपे चढ़े हुए होते हैं ना, वो खोपे हम उतारेंगे तो फिर ही कुछ होगा। खोपे घोड़े की आंख पे चले रहने दें ताकि सीधे रास्ते पे चले, हमें अपने खोपे उतारने चाहिए। आइए लेट्स गो टू कुता बीच। आइए, यहाँ जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि नोटिस ऑलवेज स्विम बिटवीन 2 रेड येलो फ्लैग्स। तो वो हम देखते हैं, मेरे ख्याल उसमें पूरा चुके वो एक यहाँ होते होंगे जो गार्ड्स हैं जो बचाने के लिए। तो सर्फिंग के लिए इट्स नोन लाइक हाई टाइड, हाई वेव्स यहाँ आती हैं। तो आए देखते हैं। इट्स अ सनी डे एट कुता बीच एंड here we are। उस तरफ आप देखें तो वो खूबसूरत ट्रेडिशनल कश्तियाँ भी आपको नजर आएंगी, सर्फिंग करते हुए भी लोग नजर आएंगे। जो लागियान बीच और कुता बीच के दरमियान का जो फासला है वो सारा मार्केट्स और बाजारों से भरा हुआ है। हर किस्म की चीज़ें हैं, टैटूज़ हैं, ये सर्फिंग बोर्ड्स हैं, यू नेम इट एंड हैव इट। टूरिस्ट की दिलचस्पी की जो चीज़ भी उन्हें दरकार है वो सब यहाँ मिलती है। आप कभी लहरों को देखें कैसी बेचैन होती हैं साहिल से टकराने के लिए। कुछ लाती हैं, कुछ ले जाती हैं। जिंदगी भी इसी तरह है, कुछ आपको देकर जाती है, कुछ लेकर जाती है। हम उस पर राजी कितने, ये असल कहानी। मैं मोहम्मद नूरुल हसन मौजूद हूँ कुता बीच बाली में। लॉट्स ऑफ लव फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।